गाँव का अनपढ़ लड़का भगते हुए जा करके इतना बड़ा एम्पायर अंडरवर्ल्ड में खड़ा किया जा करके, और 1-2 साल के अंदर पूरा छा गया मुंबई के अंदर, पूरा फिल्मी दुनिया उसके नाम से थर्राता था। एज अ क्रिमिनल हिज डेडिकेशन फॉर मोनिका बेदी, एंड वहाँ पे ऐसा कुछ छल कपट नहीं था, देयर वाज अ ट्रू लव, हाउ ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम मोनिका बेदी। फॉर दैट स्टडी आई जस्ट अप्लाइड एप्लीकेशन टू गवर्नमेंट दैट आई शुड बी अलाउड टू मीट अबू सलेम इन द जेल। जब मैं फिक्शन राइटर हूँ मैडम, तो मेरा सिविल सेवा आचरण नियम या कोई भी लॉ रूल नहीं रोकता कि मैं फिक्शन ना लिखूँ। दैट इज मुझे पूरी कंप्लीट छूट है। मैं किसी भी फिल्म में गब्बर सिंह को भी हीरो बना सकता हूँ, ये फ्रीडम है मैडम मेरे पास। और मैं चाहता तो अबू सलेम को हीरो के रूप में पेश कर देता, भले दुनिया विलेन समझे। बॉलीवुड केवल पैसे से मतलब, दे आर टोटली कॉमर्शियल पीपल, इवन दे मिस यूज रिलीजन। कि सफ़ेद ह्यूमिलेशन देश के अंदर आज़ादी से लेकर फिल्मी में ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया गया। मेरा मानना देखिए मैडम, ये 80% हिंदुओं का देश है। हिंदू किसी जीव को अपना गाय माँ कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं। जैसे हम किसी को माँ कहते हैं तो संसार में सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं माँ के सामने। क्या हम हिंदू भाइयों के लिए माँ की रक्षा नहीं कर सकते? तलाक सिस्टम मैंने लिखा है, जम के लिखा है, और ये तलाक सिस्टम के अंदर किस प्रकार से बच्चे पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, ब्लड रिलेशन खत्म होते हैं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं। मैंने जम के लिखा है, तभी किताब जलाई गई थी ना मैडम उसको। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Bhopal, the capital of Madhya Pradesh. My guest today is an author who has written several books, but many of them have run into controversies. His Twitter handle also is filled with tweets which get a lot of reaction from in social media. Now, his book, especially on Abu Salem and Monica Bedi's love story, forms the major part of my conversation with Niaz Khan today. Niaz Khan is also very active on social media and is very vocal about his opinions. This has landed him in controversies on several occasions. Khan hit the headlines in 2017 after he requested the state government of Maharashtra to allow him to spend a month's time in Taloja jail. This he wanted to do because he wanted to meet with the dreaded gangster Abu Salem for completing his novel on his love story. Destiny in Drugs, Untold Secrets of My Ashram, Confessions at Black Grave, and Talaq Talaq Talaq, a novel on triple talaq, has angered Muslim community in Madhya Pradesh last year. But that doesn't bother him. Love Demands Blood, based on the real life of the relationship between gangster Abu Salem and actress Monica Bedi, is also selling like hotcakes. Niaz, thank you so much for coming on the podcast. Thank you, ma'am, for inviting me here. So I have a lot of questions. Your Twitter feed, your books, they become controversial and then they sell very well also. So कुछ किताबों के बारे में बात करेंगे, कुछ सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में बात करेंगे, कुछ आपके करियर के बारे में भी बात करेंगे. So let me begin with the book that interests most people, which is about Abu Salem. तो वो किताब आपने क्यों लिखी, और what was it about Abu Salem that interested you? Actually, ma'am, I was reading some news in Times of India about how he became a don, and how a 15-14 years man who was simply a mechanic in Anwar Bulletwala's garage. उत्तर प्रदेश में से. In Uttar Pradesh. जी. And suddenly I thought he went to Delhi, and after driving some time there, he went directly in Mumbai. And I think he was around 17 or 18 years when he came in contact of Dawood Ibrahim's brother. And around 20 he became a very fearful mafia. And that is okay. But once when he disappeared from India after bomb blast, he remained in Africa with Monica Bedi for 6 months almost, be fooling the cops. Then he also went to America. He remained in Chicago. He reached Europe. But a student who was hardly 7th class passed or 8th class passed, and with such a sharp mind, and it looks he has a very sharp DNA for crime world. So I was so much impressed by his personality and also his true love for Monica Bedi. I thought I should author a story of a don based on love theme. So for that purpose, actually, he was since in Taloja jail presently. And after a lot of collecting material about his life, जो मैंने इकट्ठा किया कि मेरे पास तो सब कुछ था ऑलरेडी. आई हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट हिज क्राइम वर्ल्ड.
But what is his mental state presently, and how he's feeling after when he has been put in the jail, and how he was separated from Monica Bedi. For that study, I just applied for application to government that I should be allowed to meet Abu Salem in the jail. That was the news you have, and I has broken, and it had become. हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी खबर थी कि Yes. एक आईएएस ऑफिसर जो है वो तलोजा जेल में जाना चाहता है। वो महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश काडर का एक आईएएस ऑफिसर महाराष्ट्र में जाके तलोजा जेल में जाके अबू सलेम से मिलना ही नहीं चाहता, पर वहां पे रहना चाहता है और उससे कुछ सवाल No, पूछना that चाहता was है। confusion, ma'am. Actually, I wanted to study his life. I had never mentioned about my stay inside jail because I can go daily meet him and collect information. But the news just went wrong that I want to share the cell of Dawn. तो आप वहां रहना नहीं चाहते थे, आप सिर्फ उससे मिलना Yes, I चाहते थे। wanted to have a leave for 1 month, and I could go daily because there is no provision in jail manual to share his cell or पर his उसके room. क्राइम के ऊपर आपको आपका ध्यान नहीं था, आप उसकी लव स्टोरी पे लिखना चाहते थे। नहीं, बेसिक थीम लव स्टोरी था मैडम, लेकिन आई पर वांटेड. क्यों लव स्टोरी? Basically, we generally see a lot of cases about loves, even from lower level to higher level. But as a criminal, his dedication for Monica Bedi, and वहाँ पे ऐसा कुछ छल कपट नहीं था. There was a true love, and ट्रू लव था मोनिका बेदी के that was true love. A lot He of was already married पहले to सुमेरा, है ना? yes, he was married. She is in Chicago. She was still. हाँ, मतलब उसकी काफी सारी वो सुमेरा जो है Okay, she that has was given child- interviews। That was by early marriage, but basically he was in true love with Monica और Bedi. बस नहीं, पर उस शादी के बाद सुमेरा के बाद he got married to another girl it seems। नहीं, that is wrong. But here, genuine love was between true. It was a true love. मतलब नहीं कि 3 या 4 शादी कर ले मैडम, लव नहीं हो सकता है. ही वाज इन, क्योंकि इसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया. जब इसको फ़ोन किया पहली बार तो इसने अपने आप को पाकिस्तानी बता करके हाइड किया. उसका आइडेंटिटी बाद में रिवील हुआ जा करके. तो उस समय एक मिनट, लेट मी रोल बैक। उन्होंने मोनिका बेदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शी डिडंट नो कि वो कौन है पहले, वो दुबई में। राइट. तो आपको भी यही रिसर्च आपने किया? बिल्कुल कंसर्ट हुआ था जो दुबई के अंदर. कार्यक्रम पहले कुछ ऑर्गेनाइज करता था, तो वहाँ पे इनकाउंटर, लेकिन तब तक उसकी आइडेंटिटी अंडरवर्ल्ड को बिलोंग करता है. शी वाज क्वाइट अनअवेयर ऑफ इट. क्या हो सकता है कि कोई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हो और अबू सलेम के बारे में जानता ना हो? नहीं, वो तो जानता होगा, लेकिन पर्टिकुलर वही व्यक्ति करके है. ये इसको बिल्कुल पता नहीं था कि जो शायद अरसालन नाम इसने बताया था अपना, लेकिन उसको वाकई पता नहीं था उसमें. लेकिन उस बाद में जब ये सब क्राइम का चीज़ निकली ना, जब बम विस्फोट वगैरह के बारे में जब इनको भगाया जल्दी से कि छोड़ो इंडिया करके, उस समय जा करके ये रिव्यू हुआ. क्योंकि मुझे लगता है कि नो फिल्म एक्ट्रेस कैन टेक सो मच रिस्क by falling in love with the underworld mafia, because future is very clear. Here's a short primer. In 1992, Abu Salem supplied weapons to Sanjay Dutt. He played an active role in March 1993 Bombay serial bomb blast, which killed over 250 people, left 700 injured, and damaged property worth 270 million. In 1993, he left the country and moved to Dubai, when the Mumbai police started rounding up suspects in the serial blast case. On 20th September 2002, Abu Salem was arrested along with Monica Bedi by Interpol in Lisbon, in Portugal. His phone was tracked using GPS technology. Now, Monica Bedi is a film actress who reportedly had a relationship with him. Monica Bedi has spoken in several interviews about her relationship with Abu Salem. तो जब वो in your research आपको ये पता लगा that she was genuinely in love with him Correct. in Dubai. There's no question, ma'am. Even when they were in jail in Portugal, I think that was Portugal. नहीं, पहले तो दुबई की बात करते हैं ना। दुबई में क्या हुआ? दुबई में भी जब यहाँ से भागे तो वहाँ पे छिपे रहे. कौन भागा था? अबू सलेम अभी भागा सलेम था? इनको भी भगा के ले गया था ना, कि सभी पे शक था, सभी भग के गए थे, छुपे थे. वो तो जहाँ कैमल्स मार्केट एक होती है, वहाँ बड़ा ऑर्डिनरी घर में छुपा हुआ था अबू सलेम जा करके. सब वहीं पे तो छिपे थे लोग. पर मोनिका के साथ नहीं गया था। हाँ, अलग अलग गए थे सब अलग अलग भगे थे. ठीक है, तो अब मोनिका कब मिली उससे पहले, और आपके रिसर्च में आपको क्या पता लगा? नहीं, एक्चुअली मुलाकात जब इसने अपने आप को पाकिस्तानी बताया था, अबू सलेम ने कंसर्ट ऑर्गेनाइजर बताया था, और धीरे धीरे बातचीत होते होते वो लप टैंग उसमें चला गया. लेकिन जब उसका ये क्राइम एक्सपोज हुआ
चारों तरफ, तब उसको जाकर लगा कि नहीं ये, लेकिन चूंकि ट्रू लव था इसका तो इसलिए कोऑपरेट भी किया इसने। ऐसा नहीं कि जानने के बाद उससे सेपरेट हो गई हो, चाहती तो कन्फेस करके पुलिस के सामने आ जाती हो, लेकिन उसके साथ ही रही 6 माह तक शिवाजी तबू सलेम इन अफ्रीका। नहीं, आप पहले दुबई की बात करिए ना। शी फॉल्स इन लव विद दिस मैन हु सेज हिज नेम इज अरसलन, है ना, और वो कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा नाम अरसलन है। तो मोनिका बेदी जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है फॉल्स इन लव विद अ पाकिस्तानी, एंड फिर वो बताता है उसको कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और उसका पासपोर्ट पता नहीं अभी क्या है, और वो कहता है कि मैं अबू सलेम हूँ। पर वो कहती है कि अब आई वॉज इन लव विद हिम। उसके बाद वो वहाँ से अफ्रीका जाती है, और अफ्रीका जाती है ऑन इंडियन पासपोर्ट। I had not. You didn't do that research. अच्छा, अब वो जाती है उसके साथ knowing that Yes. ये बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज्ड है, इंडिया इज आफ्टर हिम, ये सब, और फिर कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं है। दैट्स व्हाट हर इंटरव्यूज आर। पर शी इज इन लव विद दिस मैन। It is not necessary that she is speaking the truth. Maybe she is hiding, but she wandered in entire Africa from one country to another almost for 6 months. So later she knew. आप मिले उनसे? नहीं, I wanted try to meet but she refused. तो ना अबू सलेम से मिले ना मोनिका से नहीं, I मिले don't need ma'am, because there was for the last 20 years there were so many. हाँ, I had visited his village, and for the childhood life I was entire day in his village. in Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh, and even I went to his mother's grave because I have shown mother's grave. उसका स्कूल जहाँ पढ़ा वो देखा, मदरसा देखा, अनवर बुलेट वाला जहाँ ये काम करता था 14-15 साल के अंदर, उस दुकान को देखने गया मैं। Here's a short primer. Khan visited Sarai Mir, hometown of 1993 Mumbai serial blast convict in Azamgarh district of Uttar Pradesh, to pen this novel that he's talking about. It's inspired by the life of Abu Salem and Monica Bedi. Now, who is Abu Salem? Abu Salem is a gangster and terrorist from Azamgarh district in Uttar Pradesh. Abu Salem was part of India's most wanted Dawood Ibrahim's gang. His modus operandi was to hire unemployed youth as mercenary shooters in Mumbai and have them disappear in the hinterlands of India. Salem had terrorized the Bombay film industry with extortion threats and blackmail and murder. He was arrested in 2002 in Portugal on charges of using a fake passport and extradited to India. Salem was tried and convicted in 1993 Bombay serial blast case and the murder of music baron Gulshan Kumar, shooting at Indian actress Manisha's secretary, murdering a property builder, and more than 50 other cases. He was sentenced to life imprisonment in 2015. वहाँ से जब आप उस गांव में जब आप गए तो आपको कुछ ऐसे लगा कि कुछ तो था वहाँ पे, कुछ हो रहा था, रेडिकलाइजेशन या कुछ, मतलब यूजुअली कुछ किस्सा होता है, कुछ वाकया होता है एक किसी के जिंदगी में कि वो टेररिज्म की तरफ झुक जाता है, या वो गुस्सैल था, उसकी कुछ था उस, आपने देखा वहाँ पे? जनरली वो मैंने देखा कि कहने में तो विलेज है मैडम, बट इट लुक्स लाइक अ टाउन बिकॉज वेरी लार्ज बिल्डिंग, इवन इन दैट प्लेस देयर आर 3 बिग वेरी लार्ज मॉस्क्स देयर। एंड जनरली जो मैंने पूछा तो काफ़ी लोग मुंबई के अंदर सब उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व थे, पैसा खूब कमाया उन लोगों ने। तो मुझे लग रहा है कि उस समय एक ये फीलिंग तो लोगों को चली गई थी कि इस वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि इस गांव में इतना पैसा कहाँ से आया जहाँ पे पूरे कंक्रीट बिल्डिंग खड़ी कई मंजिले अबू सलेम का मकान भी देखा मैंने, बहुत बड़ा मकान बना के रखा हुआ है गांव में। तो इंटायर विलेज का जो अपीयरेंस लगता है मैडम कि इनका कनेक्शन तो पहले से कल्चर बन गया था उस विलेज के अंदर कि बाहर जाओ वहाँ पे रह के और वहाँ फ्यूचर आपका अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन मिला होगा वहाँ जाने का मुंबई। तो ये तो बात बाहर निकली थी कि वो उसका एक मोडस ऑपरेंडी था कि गांव के लड़कों को वो मुंबई ले जाता था, वहाँ पे शार्प शूटर की तरह उन्हें इस्तेमाल करता था। क्वाइट ट्रू। बाद में एक ही बार में एक अपराध कराने के बाद वापस कर दिया करता था, जाइए कम नेक्स्ट टाइम दूसरे आते थे, मतलब रिपीट नहीं करता था, नेवर यूज्ड। तो ये बात आपको वहाँ गाँव वाले ने कुछ बताई कि वो डरे हुए हैं, नहीं बताते? नहीं, डरे हुए बहुत। यहाँ के उसके भाई तो घर में छिपा था, मिला नहीं, मेरे डर के मारे हो। तो मैंने उसके बड़े भाई से मिलने की कोशिश की, बट उसने कुछ ना कुछ बहाना मार दिया। लेकिन जो भी रिलेटिव्स थे तो जो भी मेरी बातचीत हुई तो उस एरिया के अंदर तो वही करता, जब भी क्राइम में हमेशा यूज़ नहीं करता था किसी को, ही यूज्ड सिंगल टाइम।
वो तो एक्चुअली देयर आर सो मैनी स्टोरीज एंड सो मैनी रिसर्च इवन बाय मीडिया वर्ल्ड ऑन हिज लाइफ कि यू हैव एवरीथिंग ऑन नेटवर्क। तो गांव में तो बेसिकली मैं उसका बैकग्राउंड के लिए मैं गांव से पर गया था आपको मैडम। कैसे लगा कि वो ट्रू लव था मोनिका और अबू सलेम का? बिकॉज जो मीडिया रिपोर्ट्स थे कि वो तो सीरियल ऑफेंडर क्या कहिए, वुमनाइजर था। पहले सुमेरा के साथ शादी की, उसके बाद नहीं मैडम, कराची उसको के ऐसा एक नहीं कह लड़की सकते से, कि जो पहले कई बार क्या होता गांव के अंदर पाकिस्तान की एक लड़की के साथ था। गांव के अंदर यदि कोई शादी हो जाती है मनी क्योंकि किसी ने पकड़ा किसी की शादी करा दिया तो इसलिए उसको मैं ऐसा सीरियल नहीं। हाँ लेकिन बाद में जो बच्चा भी किया उससे। उनका हाँ ना, बच्चा भी है, उसका बच्चा भी है। 2 बेटे हैं। हाँ ठीक है, दोनों शिकागो में तो बाकायदा इसने स्टेब्लिश किया, शिकागो में अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर शिकागो में खड़ा किया इसने। और बहुत वहाँ पे मुश्किल जाकर। है अमेरिका में अपना बिजनेस एम्पायर बनाना। मतलब पीपल से नहीं, वही तो मैडम बिलियंस ऑफ रुपीस, है ना? मैं जो आश्चर्य मुझे हुआ कि गांव का अनपढ़ लड़का भगते हुए जा करके इतना बड़ा एम्पायर अंडरवर्ल्ड में खड़ा किया जा करके, और 1-2 साल के अंदर पूरा छा गया मुंबई के अंदर, पूरा फिल्मी दुनिया उसके नाम पे थर्राता था। स्टोरी यहाँ से जनरेट हुई। ऊपर से मैं फिक्शन लिखता हूँ तो बेसिकली ये वर्क ऑफ फिक्शन था, तो मैं ट्रू मुझे आवश्यकता लिखने की नहीं थी। मुझे तो क्राइम भी दिखाना था, कुछ एग्जेजरेशन भी करना था उसके अंदर, और कुछ उसमें ट्विस्ट देना था। तो मैंने उसका हैप्पी एंडिंग कर दिया, जबकि मैं उससे मिलता तो उसका जो सॉरो एंड होता, लेकिन मुझे न मिलने के कारण जो 50 पेजेस था तो मैंने उसको हैप्पी एंड किया, लेकिन मैसेज देते हुए देश को। तो व्हेन यू आर राइटिंग अ फिक्शन यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू ट्विस्ट द स्टोरी फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द रीडर्स, क्योंकि फिक्शन का तो इंटरेस्ट होता है एंटरटेनमेंट करना, कोई नैतिक शिक्षा देना तो होता नहीं है इसलिए। लेकिन जो बेसिक मैंने इंसिडेंट्स को तो शामिल किया है, पर मैंने उसको एक फिक्शनल थ्रिलर एंगल देते हुए एक अच्छी स्टोरी बनाई है, ताकि उसके अंदर थोड़ा सा अच्छा भी लगे, कुछ जानकारी भी लगे लोगों को, एक नैतिक शिक्षा भी, मॉरल मैसेज भी मिल जाए। अच्छी बड़ी किताब मैडम, कई 361 पेजेस की बुक है। नैतिक शिक्षा कैसे हो जाती है इस किताब में? शिक्षा से मैंने इसलिए कन्वर्ट किया कि ठीक है जेल के अंदर बंद है, पता नहीं उसने रियलाइज़ किया कि नहीं किया कि देश के खिलाफ द्रोह करने से फ्यूचर क्या होता है ज़िंदगी का, कि लगभग पूरी ज़िंदगी लगता ख़त्म हो जाएगी उसके अंदर। तो मैं उस कैरेक्टर के माध्यम से उसको मैंने इस देश से निकाला मैडम, लास्ट में जेल तोड़वा के बाहर किया मैंने उसको, तालोजा जेल, और तोड़वाने के बाद उसको ऑस्ट्रेलिया ले गया मैं, वहाँ नाम बदल के एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। फिर वहाँ पे मैंने उसके बाद में रिपीट किया कि मुझे ये क्राइम नहीं करना चाहिए था भारत के खिलाफ, और जो इसका एंड होता ठीक नहीं होता। लेकिन अब जो मेरे नए बच्चे जनरेशन आएगी उसको मैं बाद में भारत वापस भेजूंगा, लेकिन वो सही सिटीजन बने, तो मैंने उसमें नया ट्विस्ट किया स्टोरी के अंदर ना ही भेजे। बट एनीवे इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द चिल्ड्रन। मैं कहती हूँ कि अगर पिता ने ऐसा क्राइम किया हो और घिनौने हरकतें की हैं उसने। बट मुझे एक बात बताइए, आप एक IAS ऑफिसर हैं, तो आप क्रिमिनल से इतना फैसिनेट कैसे हो गए? मतलब आई वुड थिंक नेचुरल रिएक्शन होता मेरा कि आप एज एन IAS ऑफिसर, पत्रकार अगर क्रिमिनल से हो जाता है फैसिनेट, इट्स एन डिफरेंट मैटर, बट एक सिविल सर्वेंट से आई वुड थिंक कि आपका झुकाव होगा उन लोगों की तरफ जिन्होंने अबू सलेम को पकड़ा, ना कि अबू सलेम की तरफ। देखिए मैडम, मेरे 2 रोल हैं। एक तो मैं हूँ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ठीक है सर्टेन ड्यूटी, लेकिन जब मैं पेन पकड़ता हूँ, ऊपर से मैं आई एम फिक्शन राइटर, आई एम नॉट राइटिंग रियल स्टोरीज। जब मैं फिक्शन राइटर हूँ मैडम, तो मेरा सिविल सेवा आचरण नियम या कोई भी लॉ रूल नहीं रोकता कि मैं फिक्शन ना लिखूँ। दैट इज मुझे पूरी कंप्लीट छूट है। मैं किसी भी फिल्म में गब्बर सिंह को भी हीरो बना सकता हूँ, ये फ्रीडम है मैडम मेरे पास। और मैं चाहता तो अबू सलेम को हीरो के रूप में पेश कर देता, भले दुनिया विलेन समझे। मेरे पास ये भी फ्रीडम था कि मैं इसको हीरो बना दूं, उसके बाद ही मेरा कुछ नहीं होता, क्योंकि आई वाज राइटिंग वर्क तो ऑफ आपकी फिक्शन रियलिटी से बिल्कुल अलग है। दैट डज नॉट मैटर टू माय ड्यूटीज और माय पोस्ट, बिकॉज आई एम अ राइटर, आई मेक अ स्टोरीज, आई मेक कैरेक्टर्स, आई मेक विलेन्स, सो लॉट ऑफ स्कोप, सो बोथ आर नॉट इंटर रिलेटेड। नहीं, क्योंकि आपने कहा कि मोनिका एंड अबू सलेम वर रियली इन लव। हाँ, यस, व्हाई एज अ राइटर आई कैन, दैट इज नॉट क्राइम इफ आई नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी किताब में आपने जो भी लिखा हो, जी, वेदर दे वर इन लव, धोखा दिया, ये दिया, वो दिया, इन रियलिटी आप कह रहे हैं दैट दे वर रियली इन लव। और इन रियलिटी सुमेरा का इंटरव्यू है दैट अबू सलेम उसको पीटता था और उसने कहा कि उसने मोनिका को भी पीटा है। मोनिका ने ये कहा नहीं। मैडम मैं उसमें ट्रूथ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ट्विस्ट किया है, कई जगह मैंने ज़्यादा लव करवा दिया कि मेरे प्लॉट को और इंटरेस्टिंग करने के लिए जितना लव नहीं होना चाहिए उसकी लव इंटेंसिटी मैंने नावल के अंदर इंक्रीज कर दी, क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं कि उसके ट्रूथ को लेकर आना, बल्कि एक ऐसी फिक्शनल स्टोरी, फिक्शनल कैरेक्टर्स ला करके किस प्रकार से एक लव को हाइप दिया जाए,
तो मैंने ये किया, इसलिए मैंने कहीं कहीं सप्रेस किया फैक्ट्स को, कहीं उभारा है, कहीं एग्जेजरेट किया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं है अबू सलेम को एज उसकी कोई बायोग्राफी बताना लोगों को. आई वांटेड टू टेल अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी फुल ऑफ थ्रिल एंड सस्पेंस, एंड आई सक्सीडेड इन इट. ऑफ कोर्स यू सक्सीडेड इन इट, क्योंकि अबू सलेम के बारे में कौन नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी टू नो मोर अबाउट क्रिमिनल्स. करेक्ट. ठीक है, तो जो भी कुछ भी लिखा जाएगा सही, मतलब ट्रूथ हो या फिक्शन हो, जो भी लोग पढ़ेंगे उसको, राइट. तो जब आप उत्तर प्रदेश गए तो वहाँ पे भी लोग नाराज थे. द एडमिनिस्ट्रेशन वाज एंग्री कि आप उसको हीरो की तरह कहीं दिखा तो नहीं रहे. मैडम मेरे, अगर मैं तो बता के नहीं गया था एक्चुअली, मैं तो एज अ कॉमन मैन गया था. कुछ लोग थे मेरे परिचित उस एरिया के, उनके साथ गया था. मैं बता भी देता था, भीड़ वगैरह इकट्ठा हो जाती है वहाँ पे, मैं लोगों से मिल भी नहीं पाता, लोग बताते भी नहीं मेरे को सब चीज़ें. इसलिए मैं तो एज ए ऑर्डिनरी ही पूरा दिन घूमता रहा, सुबह से लेके शाम तक, पूरा गली गली मोहल्ले मोहल्ले. तो मुझे क्या फीडबैक अच्छा मिलता रहा, तो मैंने उसको बड़ा सीक्रेट रखा था, उस विजिट को सीक्रेट रखा था आपने. अच्छा, आइडेंटिटी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं की थी अपनी. तो आपने अबू सलेम्स हिस्ट्री इज़ जॉइंड विद बॉलीवुड, उसको अलग नहीं किया जा सकता. और आप खुद कह रहे हैं कि जब आप उस गांव में गए थे आपने देखा कि गांव के लोग जो थे उन्होंने ये दे फिगर्ड आउट कि बॉलीवुड से अगर जुड़ा जाए तो पैसे बन सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है. तो आपने रिसेंटली ट्वीट किया था कि बॉलीवुड एक्टर्स शुडंट बी अलाउड by Hindu priests when they visit temples during promotion of their films, as Bollywood has shown Hindu culture in a poor light. अब आपने ऐसा क्यों कहा? क्या देखिए मैडम, मेरी कोई बुक मैंने कहा तो मेरी थी आइडियोलॉजी इसलिए नहीं क्योंकि वर्क ऑफ फिक्शन है. पर्टिकुलर बुक मैं एंटरटेनमेंट की लिखता हूँ, मेरी आइडियोलॉजी नहीं. जब मैं ट्वीट करता हूँ दैट इज़ माई आइडियोलॉजी, माई आइडियाज़. मेरा अपना ओपिनियन है कि बॉलीवुड तो कोई चीज़ नहीं है, हॉलीवुड की एक्चुअली नकल है बेसिकली. सब चीज़ें वहाँ से लेकर के आई जाती हैं. और आप देखिए, बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं, इन मोस्ट ऑफ मूवीज़ वी हैव सीन रूरल प्रीस्ट, दे प्रेजेंटेड लाइक अ विलेन. ही वाज प्रेजेंटेड, ही हैड लॉन्ग चोटी, उसका कपड़ा बड़ा ऑकवर्ड टाइप का, क्लमजी टाइप का रखते थे हंसाने के लिए. तो मेरा मतलब है कि एक प्रीस्ट पूरी ज़िंदगी रिचुअल्स परफॉर्म करता है, गांव के सारे संस्कार निभाता है, आप उसको इंटरटेनमेंट का साधन नहीं बना सकते हैं. आज भी हो रहा है मैडम. मैं भी कोई सीरियल देख रहा था पिछले सप्ताह, उस सीन में फ़ोटो खींचने वाला था, रुक गया, वहाँ प्रीस्ट को कंधा पकड़ बोलता है कि मैं जो कहूँगा तू वैसा वैसा पढ़ना या वैसा वैसा बोलना जा करके. मेरा सीधा मतलब ये है कि हमारी एक वैदिक संस्था है जहाँ ब्राह्मण बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हजारों साल से प्ले कर रहे हैं मैडम. धर्म, अध्यात्म या जो स्पिरिचुअल की चीज़ें होती हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए कभी नहीं होती हैं. एक ब्राह्मण बड़ा रिलीजियस ड्यूटी होती है एक ब्राह्मण पुजारी की. तो मेरा मतलब था कि चूंकि सफ़ेद ह्यूमिलेशन देश के अंदर आज़ादी से लेकर फिल्में में ब्राह्मणों को मजाक उड़ाया गया, तो मैंने कहा ठीक है, बदल गया समय, लोग जागरूक हो गए हैं. अगर ये अपने फिल्म अल्टीमेटली इनको अपने मूवी को हिट कराने के लिए रिलीजियस प्लेसेस में जाना पड़ता है, तो जिन पंडितों को आप मजाक उड़ाते हो वहीं पे जाके ब्लेसिंग्स भी आप चाहते हो. तो मैं कहा इनको बस गुड बाय कहिए इनको कि भैया तो हमारी अच्छी छवि बताओ आकर के पंडितों की. या इसलिए मैंने ट्वीट किया था, सच्चे मन से किया था मैडम, वो कोई दिखावा नहीं था. और होना भी चाहिए कि ब्राह्मणों की प्रीस्ट की छवि को हमेशा अच्छे रूप में प्रेजेंट करना चाहिए स्क्रीन पे. अब एक मैं उदाहरण देती हूँ. अगर सारा अली खान जा रही है किसी मंदिर में, वो मस्जिद में भी जाती है, वो इबादत करने जाती है, चाहे राजस्थान में गई हो या फिर वो गुरुद्वारे में जाती है, मंदिरों में भी जाती है. अब वो फिल्में तो बना तो नहीं रही ना, उसमें उस पर शी कांट डिसाइड कि फिल्मों में कैसे दिखाना चाहिए और कैसे दिखाते आ रहे हैं. 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, इन द 2000s वो फिल्में बनाती नहीं है, वो एक्ट करती है. उसने कोई पाखंड का काम किया हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, पर वो तो सिर्फ जा रही है इबादत करने के लिए, वो सिर्फ पूजा करने के लिए जा रही है, या फिर उसकी आस्था है कि वो जा रही है. अब उसके खिलाफ अब नहीं. देखिए मैडम, मेरा तो मानना है कि बॉलीवुड केवल पैसे से मतलब, दे आर टोटली कॉमर्शियल पीपल, इवन दे मिस यूज रिलीजन. अलग अलग पे जा करके केवल फिल्मों का एक प्रमोशन है, सब कुछ है भाई. आम समय में तो जो एक्ट करते हैं ये लोग आधे कपड़े में पहनना, हर तरह वेस्टर्न चीज़ें करना, ना तो कभी आस्था नज़र नहीं आता, फिर मंदिरों पे सज धस करके जाना. तो यहाँ तक के लोग धर्म तक को नहीं छोड़ते बॉलीवुड वाले, ये उसका मिसयूज़ करते हैं फिल्मों के प्रचार के लिए इन जगहों पर जा कर के जाते हैं. दूसरी चीज़,
अल्टीमेटली ठीक है, ये स्टोरी किसी और ने लिखी, डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट किया, स्टोरी के अंदर पात्र बनाया गया है, पर यदि हमारे अंदर कैरेक्टर्स या हमारे कलाकारों के अंदर आत्मसम्मान है तो कह दे भाई, फिल्मों के अंदर पूरी स्क्रिप्ट सबको दी जाती है मैडम पढ़ने के लिए कि भाई इसमें ब्राह्मण को या पंडित जो हमारे देश का सनातन लीडर रहा है, मार्गदर्शक रहा है, संरक्षक रहा है, इस तरह के रोल में हम आपके यहाँ पे नहीं करें। इतना तो विरोध कर सकते थोड़ी कि आप यदि एक कोई बड़ा सक्सेसफुल सुपरस्टार, उसके नज़र के सामने पंडित को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उसको जोकर बना के पेश किया जा रहा है, ही शुड प्रोटेस्ट इट। इसलिए सभी इन्वॉल्व है मैडम, मेरा मानना सब इन्वॉल्व पूरी फिल्म। अगर ब्राह्मण प्रति आत्मसम्मान, उनके प्रति सम्मान का भावना होगा तो कह देंगे भाई हम ऐसा रोल नहीं करेंगे, इस तरह का यदि कैरेक्टर को ह्यूमिलेट किया जाता है। इसलिए मैं आज भी अडिग हूँ मैडम कि बॉलीवुड एक्टर्स को फिल्मी दुनिया के अंदर, कि मैंने ब्राह्मण द ग्रेट लिखने की रिसर्च किया है मैडम 1.5 साल से। हाँ जी, बोलिए। ये किताब है आपने लिखी है। हाँ, आप अभी स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रहे थे, आपने स्टीरियोटाइपिंग दिखा तो दी, इसमें भी तो दिखा दी, चोटी वाले, जनेऊ, धोती, स्टीरियोटाइपिंग नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर ह्यूमिलिएशन, बट डिग्निटी, सिंबल ऑफ डिग्निटी। इफ एनी priest is moving around in this dress, that is a holy dress. Go inside the book. नहीं, पर आपने स्टीरियोटाइपिंग की बात की ना कि बॉलीवुड जो है वो स्टीरियोटाइपिंग करता है, चोटी वाले दिखाते हैं। बात कर रहा हूँ कि हमेशा चोटी नहीं, चोटी मतलब इस प्रकार से चोटी, ऐसा पहनावा, विलेन के डायलॉग, विलेन का कैरेक्टर, उसको डेलिबरेटली दिखाते हैं कि पुजारी या पंडित होता, समाज मैनिपुलेशन करता है, लोगों को भड़काता है, अपनी ऊंची जाति का फायदा होता। मेरा मतलब दैट इज आइडियल कैरेक्टर। मैं तो चाहता हूँ हर ब्राह्मण को इसी ड्रेस में रहना चाहिए। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज़ अ राइट कि आप कैसे डिपिक्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज़ प्रॉबली द स्ट्रेंथ ऑफ हिंदुइज्म, कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप ऑब्जेक्ट भी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हिंदुइज्म। इन हिंदुइज्म नोबडी हैज़ द राइट टू से कि आप इस तरह पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप इस तरह डिपिक्ट नहीं कर सकते। सो देर आर मैनी, बिकॉज इट्स सच एन ओपन रिलीजन, इट इज़ ओपन टू सो मेनी आइडियाज़। यही दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलीजन, कि यू हैव सो मेनी इंटरप्रिटेशंस टू द रिलीजन। आपने कहा दैट यू हैव एन ऑब्जेक्शन टू द वे ब्राह्मण्स आर शोन। सिर्फ ब्राह्मण क्यों, बाकी जाति भी तो हैं? नहीं, देखिए पहले तो बता दूं मैडम कि जाति कॉन्सेप्ट नया है। कहीं आप ऋग्वेद के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ण हैं, जातियां तो बाद में, जाति क्या तो मुसलमानों में जातियां बन गई बाद में, जब अंग्रेज आए तो हमारे यहाँ पे भिस्ती, जुलाहा, नाई लेके हर कोई मिल जाएगा। कास्टिज्म सिस्टम तो बाद में इसको प्रमोट करके पूरे समाज को तोड़ने के लिए इसको पूरा फैला दिया। 4 ही वर्ण थे मैडम जो ड्यूटी बेस्ड थे, 4 वर्ण थे। और जो स्पिरिचुअल ड्यूटी थी, रिलीजियस ड्यूटी थी, वेदों के संरक्षण की बात थी, उसके मैसेज को आगे ले जाने की बात थी, वो केवल ब्राह्मणों को दिया गया था। और हजारों साल तक ये चलता रहा। लेकिन बाद में जब फॉरेन रूलर्स आना, खासकर ब्रिटिश टाइम पे जब ये लोग आना शुरू कर दिए, तो उसके अंदर इतने कास्ट में डिवाइड कर दिया कि हम जब भी हम कास्ट कहते हैं तो एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू पिक्चर ऑफ वर्ण सिस्टम। When in Indian जो structure was erected for the last 2000 years ago, that was based on the Varna system, and in Varna system the duties were very clear cut duties. Everyone had to obey its own duties, in which Brahmin was at the top of the spiritual system. उसको धर्म ड्यूटी के लिए उसको ही दी गई थी। इसलिए अपन उसको कास्ट में तो मैं बिल्कुल आपत्ति मैडम, कास्ट तो हम नहीं कह सकते, हम वर्ण। और वर्ण की बात अगर हम करते तो आज ये इतना समाज के अंदर डिवीजन नहीं होता मैडम, कि वर्ण तो स्पष्ट है, 4 वर्ण है, 4 ड्यूटीज़ है। आज हमने इतने कास्ट डिवाइड कर दिया कि सब ने अपना अपना संगठन बना लिया। पूरे देश के अंदर हजारों संगठन बन गए, ग्रुप बन गए, सब अपने अपने प्रमोट। तो और तो हम सोसाइटी को डिवाइड कर दें, पहले 4 ही वर्ण थे, आज तो हमने कास्ट ला कर 1000 ग्रुप खड़े कर दिए देश के अंदर। नहीं, पर आप, आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन। आपने बोला कि आपको आपत्ति इस बात पे है कि ब्राह्मणों को बुरी तरह दिखाया जा रहा है। आपको इस बात पर आपत्ति नहीं है कि क्रिश्चियंस को या फिर मुसलमानों को या फिर दलितों को या फिर बनिया जाति, किसी भी जाति को बुरा दिखाया जाएगा? आपको सिर्फ ब्राह्मण से नहीं, इसलिए कि मैडम मैं कर रहा हूँ कि मैंने ब्राह्मण द ग्रेट लिखी है, मेरा सब्जेक्ट ब्राह्मण ही रहा है। अब मैं सारे मेरे जो ट्वीट में कर रहा हूँ ब्राह्मण पे ही फोकस कर रहा हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद किताब के अंदर आपको एक सब्जेक्ट नहीं मिला जो किसी की इमोशंस को हर्ट करता हो। यहाँ तक कि कुछ ऐसे वर्ड जो समाज में हम यूज़ करते हैं मैडम, मैंने उसको हटाया वहाँ से, ताकि यदि कोई पढ़ ही रहे हैं, गैर ब्राह्मण ही पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा कि नियाज ने ब्राह्मणों को महिमा मंडन करने के बाद
बात दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश की, मैंने सबकी फीलिंग को, लेकिन मुझे सिर्फ यही था जो सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ विगत खासकर ब्रिटिश टाइम से के बाद जब आज़ाद हुआ देश, तो उस समय फ्रीडम जैसे एंटर किया तो उसे ऑल ऑफ सडन ब्राह्मण भी उसी लेवल पे आ गया, तो धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो जो डिग्रेडेशन हुआ ब्राह्मणों का आफ्टर इंडिपेंडेंस मैडम, मैं उसके लिए कंसर्न हूँ, और उसके लिए भी कंसर्न हूँ कि एक ऐसी संस्था जो 3000 सालों से एक शानदार फंक्शन रहा। वेद तो उस समय मैडम आपके यहाँ पे आ गए जब वर्ल्ड अंधकारों में डूबा हुआ था, तब आपने वृक्षों की बात की थी, पूजा की, नदियों की पूजा की, हरी भरी धरती की, सारे देवी देवता ही प्रकृति के रक्षक है। आप देखिए आज पूरा दुनिया क्लाइमेट चेंज रो रहा है, सब वेदों में सुलूफन था। अगर हम इज्जत किए होते नदियों की, पहाड़ों की, जंगलों की पूजा, तो आज ये धरती क्लाइमेट चेंज जो बिल्कुल से आज जल रही धरती, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी, ये बड़े गर्व का विषय है कि एक सनातन धर्म हिंदुओं के पास वो ट्रेजर था जब पूरा संसार अंधकार में था। अब हमारे वेदों को ही भुलाया जा रहा है, वेदों पे ही गालियाँ दी जा रही हैं, सोशल मीडिया के अंदर बड़े बड़े आर्टिकल वेदों पे आ रहे हैं, जबकि बड़े बड़े वेस्टर्नर ने अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि जो हमारे ग्रंथ थे वेद, जो आज से लिखे गए थे ईसा से 500 से 1000 साल पहले, उनके अंदर वो ट्रेजर छिपा हुआ है कि हम खुद सम्मान नहीं करते। अगर जो ब्राह्मण उसके संरक्षक हैं, कस्टोडियन है, उनकी दशा हम खराब कर रहे हैं, तो इन वेदों कौन बचाएगा? पूरा वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ पे आ जाएगा, कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा, हमारे हाथ से संपदा जो दुनिया में हम लीडर थे सब खत्म हो जाता। बेसिकली जो सनातन धर्म का जो बेसिक क्विंटेसेंस है मैडम, जो उसकी सोल है, उसको प्रोटेक्ट तब कर पाएंगे जब हम एक ब्राह्मण की संस्था जो एंशिएंट वैदिक ऑर्डर को हम बचाएं। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन करिए, लेकिन अपनी उस संस्था को मत खोइए, उसके अंदर तो आप मेंटेन करिए। ब्राह्मण का आप सम्मान नहीं करोगे, पुजारियों को आप गाली दोगे, तो धीरे धीरे बेचारे वो भी उस धारा से हट जाएंगे। तो जो भी नॉलेज आज के डेट पर थोड़ा बहुत समाज के अंदर है, मैं मैडम जब रिसर्च कर रहा था इसमें, तो कई ब्राह्मण जो टीका लगाते हैं, चोटी रखते हैं, मैंने थोड़ा सा उनका स्टडी करने के लिए कि ये अपने एंशिएंट वैदिक ऑर्डर को लेकर के या जो ब्राह्मण कितना जानते हैं, तो जब मैंने पूछा तो दे डू नॉट इवन नो कि हाउ मनी वेदास एंड किसी वेद में कितने मंडल हैं। कौन नहीं जानता? लोग नहीं जानते कि जो ब्राह्मण है मैडम, जो ब्राह्मण जो उनका तो अपीयरेंस ड्रेस कोड तो है ब्राह्मण का, लेकिन दे आर क्वाइट अनअवेयर अबाउट हाउ मैनी मंडल्स आर इन ऋग्वेदा एंड व्हाट इज कंटेंट, एंड इवन आई आस्क देम टेल मी 2 or 3 गॉड एंड गॉडेस मेंशन्ड इन वेद, दे डू नॉट नो एनीथिंग। आप देखिए कि ये जनरेशन इस सीमा तक पहुंच गई है जहाँ पे ब्राह्मण मोटी मोटी चीज़ें कि हमको जो है यज्ञ करना है, पूजा करना है, क्या मंत्र पढ़ना है, लेकिन एक बृहद जो नॉलेज है जिसके अंदर अब कितनी चीज़ें जो निभानी ज़िंदगी में, जीके का नॉलेज एकदम कमज़ोर हो गया। जो शास्त्रों के लिए हम नहीं जानते तो विदेशी वाले थोड़ी इसको जानने आएंगे। तो मेरा मतलब वही मैडम किताब का थीम कि वेदों को फिर से पढ़ा जाए, उसका प्रचार किया जाए, संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया, क्योंकि बेसिकली संस्कृत में ही पूरा सब कुछ रचना हुई थी। इसके अलावा जो हमारा पहनावा ओढ़ावा है, इसमें काहे का शर्म, चोटी रख करके, धोती रख करके, मैं तो कहता हूँ कलेक्टर भी यदि इस अपने ट्रेडिशनल रोब में जाता है, गर्व की बात है। मुझे तो अच्छा लगता है कोई ब्राह्मण चोटी रख करके मेरे से मिलने आता है, मुझे गर्व होता है मैडम कि आज हम अंग्रेजों को चीज़ नकल नहीं कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ तो अंग्रेजों की दी हुई हमारे यहाँ 100% जो आज यूज़ कर रहे हैं, सुई से लेकर जहाज तक सब अंग्रेजों ने दिया। आप बता दीजिए हमने क्या बनाया 21वीं सदी के अंदर। एवरीथिंग फ्रॉम निडल टू एरोप्लेन, एवरीथिंग इज गिवन बाय, इन्वेंटेड बाय व्हाइट आपसे पीपल। लोग पूछते नहीं हैं कि आप मुस्लिम हैं, और पूछते तो होंगे ऑब्वियसली दैट यू आर अ मुस्लिम, और आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं और उसके प्रचार के बारे में बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, सो व्हाई? नहीं देखिए मैडम, पूछते भी हैं और सोशल मीडिया पे फीडबैक्स भी आते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है मैडम कि मेरे पास मुस्लिमों के फ़ोन भी आए कि सर आप जो भी किया है आपने एक अच्छा काम किया है, कोई शक नहीं कि कम्युनिटी एक बड़ा प्रोफाइल रहा है धर्म के क्षेत्र में इनका। तो आपको होगा कि पढ़े लिखे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, मुस्लिम अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेजॉन पे भी मैं एक आजम खान नाम व्यक्ति ने बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने अपना फीडबैक दिया है, उसको पढ़कर तो मैं दंग रह गया कि मुस्लिम क्या इतना इस धर्म में रुचि ले रही नई जनरेशन जा करके। कुछ लोग ऐसे भी जिनके मन में लगता है मैडम कि बीइंग अ मुस्लिम आई शुड नॉट हैव एंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज आई एम मुस्लिम एंड माई रिलीजन डज नॉट अलाउ मी टू स्पेशली अप्रिशिएट द आइडोल वर्शिपर। इसको मोटी मोटी भाषा में मैं ही कहूँ कि आइडोल वर्शिप और आइडोल को तोड़ना ये इस्लाम और हिंदू में ही अपोजिट दोनों है। लेकिन उसके बाद भी एक कम्युनिटी को तो डेफिनेटली अगर ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड में देखें तो जो भी किताब है मेरी वो जस्ट एक अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ मैडम। लेकिन दुनिया आगे बढ़ चुकी, मुसलमान भी पढ़ लिख गए हैं, लोग समझते हैं। और दूसरी चीज़ ये मैडम, मैं जब मैं राइटर हूँ तो मुझे इनमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये राइटर सबका होता है। अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ आश्रम मैंने लिखी तो मैंने हिंदुओं पे लिखा, खुल करके उसमें लिखा था। तलाक लिखा तो मैंने मुस्लिम कस्टम्स पे, वो उस किताब जलाई भी गई मैडम, तलाक 2-3 शहरों के अंदर। लेकिन उस समय जो मुझे कहना था मैंने कहा। तो राइटर किसी एक रिलीजन नहीं होता। मैं मानता हूँ मैडम वंस यू आर राइटर यू हैव अ पेन, because actually that is a blessing of सरस्वती माँ। So what does religion mean to you?
देखिए मैडम रिलीजन को बड़े बृहत रूप में लेता हूँ उसको। अगर आप किसी पर्टिकुलर फेथ को आप एडॉप्ट करते हैं और दूसरे के लिए आप हेट पैदा करते हैं, या दूसरे को मैं मुसलमान सुपीरियर हूँ, हिंदू छोटा है क्योंकि नरक में जलेगा, मैं कदापि नहीं मानता। इस इंसानियत, ह्यूमैनिटी के मोहम्मद साहब की लाइफ पे जब मैं पढ़ रहा था बायोग्राफी मैडम, तो मुझे मोहम्मद साहब को पढ़ते पढ़ते गांधी जी की याद आ गई। कई एक्टिविटीज़ ऐसी मोहम्मद साहब ने की, तो मुझे जो अध्ययन चला इस्लाम के बारे में कि जो आज हम रूप दुनिया में देख रहे हैं, मोहम्मद साहब इतने टॉलरेंट थे मैडम, इतने टॉलरेंट थे कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म बोले मानो, यहूदियों बोला ठीक है आप अपना मानते रहो, अपना मानेंगे, आप हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करें। और यहाँ तक कि कई बार दुश्मन जो पकड़े गए वार के अंदर, उन्होंने मैडम को जाने दिया आराम से। तो ये टॉलरेंस है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस्लाम के अंदर लोगों ने इतना उसको स्ट्रिक्ट कर दिया कि अब लगा नहीं भाई, अगर आप मुस्लिम से हट के बात करोगे तो यू आर काफिर। मोहम्मद साहब की लाइफ पढ़िए, एक्चुअली जो पूरे संसार के अंदर मोहम्मद साहब के बारे में लोग नहीं जानते। ही वॉज वेरी टॉलरेंट, सबको सहन करते थे और को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते थे। मेरा वही विश्वास है पूरा मैडम, इस्लाम कहीं नहीं कहता कि यदि आप मुस्लिम हो और हिंदू के अंदर कोई पॉजिटिव, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ मैडम उनकी अच्छी चीज़ों को, लेकिन जो चीज़ मुझे मना की गई है मुझे वो नहीं करना। तीसरी चीज़, कौन सी चीज़ मना की गई है जो? अब जैसे आपको आइडोल वर्शिप किसी बिहार में नहीं करना है। इसके अलावा खासकर हमारा तो जो रिलीजन है मैडम, ये तो केवल नॉन गॉड है, जो नॉन एग्जिस्टेंस है, कोई उसका उस फॉर्म में नहीं है कि आप कोई उसको मतलब मूर्ति वगैरह बनाकर नहीं ला सकते, कि एक ही गॉड रहा है और एक मोहम्मद रहा है, मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट रहा है। लेकिन इसके आगे मैं ये निकलता हूँ मैडम कि पूरी दुनिया जब से आई थी आइडोल वर्शिप, जब इंसान जैसे सामाजिक प्राणी बना तो सबसे पहले प्रकृति पूजा करना शुरू कर दी। पत्थरों की पूजा, पेड़ों की पूजा, सन की पूजा। मैं थोड़ा इस पर थोड़ा सा और आगे 2 कदम आगे बढ़ता हूँ मैडम। मेरा मानना ये है कि कोई भी रिलीजन है उसकी रूट्स आज की नहीं हज़ारों साल की रही हैं। और आप किसी भी रिलीजन में आप चले जाइए, देखिए सब प्यार का महफिल का संदेश। कोई धर्म नहीं कहेगा मैडम कि आप गलत काम करिए, सब भाईचारे का प्यार बांटते रहो, दूसरे पड़ोसी की मदद करो, आप दान पुण्य करो। आप गाय रक्षा की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात की, मुसलमान को गाय अपनाना चाहिए, गाय रक्षा करना। यू नो दैट दिस इज ऑल्सो अ कंट्रोवर्शियल थिंग। जब देखिए अभी कुछ लोगों को पता नहीं हुआ मैडम, मोहम्मद साहब ने गाय के दूध की तारीफ की थी कि ये बहुत ही यूज़फुल होता है। और गाय तो गौरक्षा प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल सही। अगर या फिर इट इज़ बिकॉज इट इज़ न्यूट्रिशियस, इसलिए आप कह रहे हैं नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल मैडम। देखिए मेरा तो मानना है, देखिए 80% भले ही लोग मुझे फंडामेंटलिस्ट या कहें या कुछ भी कहें, मेरा मानना है देखिए मैडम, ये 80% हिंदुओं का देश है। हिंदू किसी जीव को अपना गाय माँ कह रहे हैं। जैसे हम किसी को माँ कहते हैं तो संसार में सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं माँ के सामने। अगर बेचारे हिंदू गाय को अपनी माँ कह रहे हैं तो क्या हम इतनी खाने की चीज़ें हैं हमारे पास, क्या हम हिंदू भाइयों के लिए माँ की रक्षा नहीं कर सकते? मेरा पर्सनल ये है कि मैं तो वो माँ मानते, मैं भी माँ मानता हूँ गाय को। और जब गाय को मैं माँ कह रहा हूँ तो इस्लाम मुझे नहीं रोकता कि आप माँ नहीं कह सकते उसको, मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, मैं भगवान नहीं मान सकता, ये मेरा इस्लाम कहता है, लेकिन यदि गाय को मैं भी अपना माँ मानूँ तो इस्लाम कहीं नहीं रोकता है। हिंदू भाई हमारे भाई हैं, उनके साथ हम सुबह शाम तक रहते हैं, उनकी माँ की हम रक्षा करें। गाय घरों में पाले, हमको दूध देगी, बछड़े आएंगे, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी होगा। और कहीं ना कहीं हम एक अपने जो मेजॉरिटी संख्या में हमारे बेचारे सहनशील कम्युनिटी है हिंदुओं की, उनके प्रति सम्मान का भाव होता है। इसलिए मैंने कहा था मैडम कि आप बिल्कुल रखिए, गाय पालिए, रक्षा करिए। और यदि कोई गाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप इन्फॉर्मर रक्षक बनिए, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। हिंदुइज्म के बारे में भी पढ़ा है आपने, इस्लाम के बारे में भी पढ़ा है, आप किताबें भी लिखते हैं, तो आपने ये पढ़ा होगा और आपने देखा भी होगा कि महाराष्ट्र सदन में हाल ही में कंट्रोवर्सी उठी थी कि वेयर वन लेजिस्लेटर सेड कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा मजहब हमें इजाज़त नहीं देता कि हम सिर झुकाएं किसी के सामने। तो वंदे मातरम नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि हम अपनी माँ के सामने भी नहीं अपना सिर झुकाते, तो उसको लेके भी कंट्रोवर्सी उठा था। तो क्या किसी के सामने सिर झुकाना, एक इंसान के सामने सिर झुकाना मजहब अलाउ करता है या नहीं करता? इसको लेके योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आपका मजहब, आपका धर्म आपके घर में, नेशन फर्स्ट। तो अब आप, और यही फडणवीस साहब ने कहा कि दिस इज नॉट समथिंग, वंदे मातरम इज नॉट समथिंग टू डू विद रिलीजन, इट इज समथिंग टू डू कि अबाउट पेट्रियोटिज्म, अबाउट नेशनलिज्म, कि आप वंदे मातरम जो है ये एक इट्स समथिंग टू डू विद नेशन। तो आप क्या समझते हैं, मजहब और नेशनहुड, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट में आ गया यहाँ पर? नहीं, देखिए मैं तो, जो मेरा ओपिनियन इस्लाम को लेकर बड़ा क्लियर है मैडम। पहली चीज़ तो ये है कि
रिलीजन के अंदर हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हम जो चीज़ किताब में पढ़ ली है उसको समय के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कैथोलिक भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए, प्रोटेस्टेंट पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हुए हैं, हिंदूज़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, मुस्लिम्स के अंदर हमने एक लाइन पकड़ ली है जिस पे, और यही कारण है कि आज 2 अरब आबादी नंबर 1 दुनिया में होने जा रहा है। क्रिश्चियन के बाद बहुत जल्दी इस्लाम दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा रिलीजन में। मैडम अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे समय के साथ साथ, और हम रिजिडिटी को लेकर के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मैडम, और समय के साथ हम पिछड़ जाएंगे। जब जो वंदे मातरम बोले, आज की बात नहीं मैडम, ये कई बार ऐसी आपत्तियाँ हुई कि हम लोग नहीं गाएंगे वंदे मातरम, ये तो बहुत दिनों से होता रहा है। मेरा मानना ये है मैडम कि देखिए, जब मेरे पास नेशन रहेगा, ज़मीन तो माँ है हमारी, माँ तो है ही हमारी, उसके गोद में हम पलते हैं, जन्म लेते हैं, वहीं खेलते कूदते हैं, तो ज़मीन तो क्यों नहीं हमारी माँ है। अगर मैं कहता हूँ ज़मीन मेरी माँ है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं अब अल्लाह नहीं है, अब ज़मीन ही मेरा भगवान, मैं तो भगवान नहीं कहा मैंने उसको, ज़मीन को बनना, लेकिन पल उसी गोद में रहो तो माँ तो पालती है, लेकिन जब माँ किसी को मालती है तो माँ के ऊपर ही भगवान रहता है। तो यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है मैडम कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं वो देश हमारा, वो माँ है, हमको वो पालता है, हमको संरक्षण देता है, हमको सम्मान देता है जा करके। और इसलिए अगर इसको हम रिलीजन से कदापि नहीं जोड़ सकते, लेकिन हमको देखिए आज हमारी आबादी इतनी है मैडम, हमको हर तरह की फ्रीडम है इस्लाम मानने के लिए। अगर हम जा चले जाएँ सऊदी अरब के अंदर तो हमें बहुत सी फ्रीडम हिंदुओं को वहाँ पे नहीं है, भी नहीं मैडम, बहुत सी फ्रीडम आपको नहीं है वहाँ। हिंदू ट्रेडिशन या कल्चर या रिचुअल्स अपने वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। 80% हिंदू होकर भी आपको सब तरह की छूट दी गई है, हर तरह सम्मान, हिंदू भाई मुसलमानों के त्यौहार में शामिल होते हैं। हमको भी दिल बड़ा करना पड़ेगा कि उनकी फीलिंग्स, जहाँ उनके जो आदर्श हैं बड़े, उनको हमको सम्मान करना पड़ेगा मैडम। हम 2 तरह नदी नहीं बहा सकते यहाँ पे। अगर हमको देश को आगे लेके जाना, दिल बड़ा मुसलमानों को करना पड़ेगा अपना। आपके समुदाय के लोग क्या आपसे नाराज़ हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा मैं मैडम परवाह नहीं करता मेरे से कौन नाराज़ कौन नहीं है। मुझे तो लगता है कि जो मेरे वसूल हैं, जो आइडियाज़ है, जो ह्यूमैनिटी है, बेसिक जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन बीइंग का, कि खुदा अल्लाह भगवान ने बनाया इंसान को, 2 प्राणी को, उसके अलग अलग मजहब हो गए, कालांतर जाके मेरी यूनिट मैडम हमेशा इंसान होती है। इसीलिए आप मैं संतों के बीच में जाके, हिंदू संतों के बीच में जाके बैठते हैं, आपकी किताब का विमोचन वो करते हैं, तो तब जब ऐसे होता है तो ऑब्वियसली रिश्तेदार हो जाएं या फिर जो कट्टरपंथी आपके धर्म में भी हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये ब्राह्मणों के बारे में लिख रहा है, ही इज़ नॉट राइटिंग अबाउट आवर रिलीजन और द रिलीजन ही इज़ बॉर्न इनटू। तो आपको आपत्ति नहीं होती जब वो गुस्से हो जाते हैं? नहीं मैडम, मेरे फैमिली में भी, अब चूँकि नेशनल न्यूज है तो मेरे रिश्तेदार पाकिस्तान बॉर्डर पे भी रह रहे हैं जाके, मेरे रिलेटिव्स कई इंडिया में, सबके फ़ोन वहाँ से आते हैं कि आप ये साधुओं के साथ मंच शेयर करते रहे थे, हमने देखा जा करके। लेकिन उस मंच पे मैं रहा, शंकराचार्य वाज देयर वर 4 महामंडलेश्वर ऑन द सेम मंच में, एंड इट वाज वेरी बिग इवेंट, एंड आई प्रेजेंटेड माई व्यूज़ ओपनली among the संत एंड साधुस, वेरी बिग साधुस एंड संत। लेकिन उसके अंदर मैंने कहीं भी इस्लाम की बुराई नहीं की मैडम, ना तो मैंने, अगर मैंने ब्राह्मणों की तारीफ की। अब मैं कंटेंट के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ उसके ऑप्टिक्स के बारे में कह रही हूँ, विजुअली। किताब कितने लोग पढ़ते हैं? और आपने भी फिक्शन कहा है ना किताब को, तो इट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ रिसर्च अबाउट फिक्शन कह लीजिए इसको, रियलिस्टिक, दैट इज अ रियल जॉनर, मैंने इसको रियलिस्टिक फिक्शन नाम दिया है। ठीक है। और आपने ये भी कहा कि बीजेपी आपसे नाराज़ है क्योंकि, या फिर हिंदूज आर ऑल्सो अपसेट क्योंकि आपके नाम में खान जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ये हुआ मैडम, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि बहुत अब छोटा सा इशू हो गया मेरे लिए। लेकिन हाँ, एक हमारे देश के अंदर नाम को लेकर के तो क्लियर कट मैडम, कोई मुसलमान स्वीकार करे किसी बड़े पद पे कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, प्रकृति का नियम है। आज जो हिंदू बेचारे अमेरिका में रहते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो सिख रह रहे हैं कनाडा में उनको बोलते हैं ब्लैक आदमी हमारे यहाँ पे आ गया है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन लॉ ऑफ नेचर। आपके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, सीधी बात है मैडम, मैं हूँ क्या, जहाँ भी रहूँगा मैं क्या, कोई मुस्लिम भी जाएगा तो डेफिनेटली जब कहीं आप रहते हैं तो आपके हर तरह के लोग से पालन पड़ता है। कुछ आपको पसंद करते हैं, कुछ आपकी आइडियोलॉजी से परेशानी है आपको, किसी को आपके धर्म से परेशानी है। लेकिन मैं इसको बड़ा इशू, मेरे मन में पीड़ा जरूर है मैडम, लेकिन मैं इतना बड़ा दिल किया हुआ मैंने कि हर हिंदू को अपना भाई मानता हूँ मैं। मेरे इसको इस डिस्क्रिमिनेशन करे तो मेरे लिए छोटा इशू होता है। मैं तो सबको, सब मेरे भाई हैं हिंदू, उनके साथ सुबह शाम तक रहता हूँ मैं। आपने कहा कि बॉलीवुड जो है वो गंद की पिटारी है, और फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बॉलीवुड को पिक्चर बनाना चाहिए अबाउट किलिंग ऑफ मुस्लिम्स इन रैंडम एरियाज, इन डिफरेंट एरियाज। तो अगर आप बॉलीवुड को गंद कहते हैं तो बॉलीवुड से क्यों एक्सपेक्टेशन है कि पिक्चर बनाएं? नहीं देखिए मैडम, यहाँ पे आप कश्मीर फाइल का जिक्र कह रही हैं, जब मिस्टर कह रहे हैं तो फिल्में 2 तरह की बनती हैं मैडम। कुछ फिल्में आती हैं, जैसे हमारे यहाँ महाभारत सक्सेसफुल सीरियल आया, कई धर्म में एक संतोषी माँ फिल्म आई थी बहुत पहले, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, पूरा सुपरहिट फिल्म रही देश के अंदर। फिर एक तरफ शोले भी आई थी, फिर कुछ फिल्में वेस्टर्न कल्चर पे आई, हाफ कपड़ों के अंदर फिल्में आई। फिल्मों से मेरा मतलब है क्वालिटी फिल्मों से है,
क्योंकि वो फिल्में जो हम बॉलीवुड से नकल करके लाते हैं उनके कल्चर को, एक्चुअली उनके कल्चर को लेके आते हैं, जहाँ पे हम हाफ न्यूडिटी या भद्दे डायलॉग्स दिखाते हैं जा करके। और कुछ फिल्में होती हैं जो अच्छी फिल्में होती हैं, पाक साफ फिल्में होती हैं मैडम। बात ये मेरा कहने का मतलब नहीं कि बॉलीवुड 100% ख़राब फिल्में बना रहा है। जब मेरा इशारा ये है कि जो गंदी फिल्में आप बनाते हो उनकी नकल करके भारत के कल्चर के विपरीत करें, उनकी तरफ अटैक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सनातन धर्म फिल्म मत बनाइए या किसी मोहम्मद साहब के लाइफ को दिखाते हुए फिल्म मत बनाइए। कैसे बना सकते हैं? बिकॉज यू कांट शो गॉड राइट इन इस्लाम। मेरा एक सिंबॉलिक, और कोई करेगा मेरा भी। सिंबॉलिक मैडम कि यदि इस्लाम पे बनाइए, सिखों बनाइए, सब बनाइए। मेरी जो आपत्ति है कि जो समय के सहते सहते धीरे धीरे हमारा जो मूवी वर्ल्ड 20-25 साल में वो बिल्कुल खिसकते खिसकते लगभग पूरी तरह से वेस्टर्नाइजेशन सा होता जा रहा है। अब फिल्म तो वेस्टर्नाइजेशन से आपको इतना खौफ क्यों है? फॉरगेट अबाउट खौफ नहीं, घृणा है मैडम। इसलिए घृणा है कि देखिए, मैं बताया कि जो चीज़ें हमारे पास सब कुछ है। मैं थोड़ा सा सुनने में कई बार मैडम बुरा भी लगता है हम लोगों को कि मैंने एक किताब लिखी थी, वंस आई वाज ब्लैक मैन। कोरोना के समय लॉन्च हुई थी तो गुमनामे में चली गई, तो मैंने इसी पे अध्ययन किया था कि पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई है, व्हाइट वर्ल्ड एंड ब्लैक वर्ल्ड। जब मैंने रिसर्च किया तो ये पाया कि सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ गोरों ने बनाया। जब मैंने गूगल पे कोई भी आइटम खोजा कि टीवी निकालो, टेलीफोन निकालो, सब अंग्रेजों के नाम, तो बढ़ते पढ़ते पढ़ते पूरा ये पाया कि हमारे पास तो जो यूज़ कर रहे हैं हम अपने देश के अंदर तो सब गोरों को, तो हमारा क्या, इंडिया, हम भारत वाले हैं, हम लोग भी अश्वेत हैं, हमने क्या बनाया? पर चलो कुछ नहीं बनाया। अब हमारे पास क्या था? हमारे धर्म थे, संस्कार थे, हजारों साल से हमारे वेद थे, हमारे वे ऑफ लाइफ था, पैटर्न था। अंग्रेज ने तो हमको आज़ाद किया ही, अपनी चीज़ें हमको दे दी, सब कुछ सुई से लेके जहाज तक। साथ में हमारा कल्चर भी छीनना शुरू कर दिया। तो जो हम हजारों साल से अपने पास रखे थे उसको फेंक फाक कर हम उनके कपड़े तक पहन रहे हैं आजकल। बाल, यहाँ तक कि हम अंग्रेज दिखे मैडम तो लोग 1-1 लाख खर्च करके बाल रंगवा रहे हैं। दे आर कोल्ड। आपने कहा कि बॉलीवुड शुड मेक अ पिक्चर अबाउट रैंडम इंसिडेंट्स जहां पर मुसलमान मारे जाते हैं, ठीक है? जब पर आप क्यों नहीं बनाते? आप क्यों नहीं लिखते? आप ब्राह्मणों के ऊपर किताब लिखते हैं, आप अबू सलेम के लव लाइफ के ऊपर किताब लिखते हैं, लेकिन आप उस पर क्यों नहीं लिखते कि मुसलमान राइट्स में मारे जाते हैं या रैंडमली मारे जाते हैं? तो मैडम मैं तो जीवित हूँ आपके सामने। 8 किताबें में 10 किताबें और आएंगी फ्यूचर में, जब तक जीवन में हूँ। अच्छा। आप कैसे कह सकते हैं फ्यूचर में कोई ऐसी किताब नहीं तो आएगी? आप अपने मजहब के बारे में आपने कोई किताब नहीं लिखी? तलाक लिखी मैडम। तलाक, अगर और उस तलाक सिस्टम मैंने लिखा है, जम के लिखा है। और ये तलाक सिस्टम के अंदर किस प्रकार से बच्चे पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, ब्लड रिलेशन खत्म होते हैं, बच्चे सड़कों पे आ जाते हैं, मैंने जम के लिखा है। तभी तो किताब जलाई गई थी ना मैडम उसको। 2-3 शहरों में किताब जली थी, तलाक। तो मैं राइटर, मुझे जो लिखना होता है मैडम, मेरा पेन बंद नहीं हुआ मैडम। पता नहीं कितनी किताबें मेरे पास आएंगी। यूसीसी के ऊपर आप क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए मैडम, मैं भी बता दूंगा आपको। फिर अगर हम वेस्टर्न थिंकिंग से या फंडामेंटल राइट जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से आया है हमारे देश के अंदर, संविधान की मोस्टली धाराएं वेस्टर्न कंट्रीज से आई हैं। अगर हम अपने ट्रेडिशनल वे में हम सोचते हैं अपने देश के अंदर, तो मेरा मानना है कि सबका कल्चर अपना खुद का कल्चर होता है, उस कल्चर को मेंटेन करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं देश के अंदर मैडम जो सबको कॉमन फॉलो करना चाहिए। अब ब्लाइंडली हम कहें कि शादी सिस्टम, निकाह सिस्टम छोड़ करके या ये जो फेरा लेकर छोड़ करके कोई थर्ड चीज़ लेकर आया, तो मैं एज अ राइटर, एज अ सिटीजन, मेरा मानना है कि हर धर्म को अपने कुछ कस्टम संस्कार उसके अपने अपने करने दिए जाए मैडम। लेकिन कोई चीज़ ऐसी जो बहुत ही हानिकारक है देश के लिए, सपोज दैट चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज को हर धर्म के अंदर कि चाइल्ड मैरिज कहीं नहीं होगा, सबकी एज बराबर मानी। जैसे मुसलमानों के अंदर 14 साल ही एज है उसकी। कुछ चीज़ें ऐसी जहां हमको यूनिफॉर्म करना पड़ेगा मैडम। कुछ जगह उन ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को हमको फॉलो करने देना पड़ेगा। आपने धर्म परिवर्तन के बारे में भी कहा है दैट बिल्कुल, यू आर, बताइए व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मेरा मानना है धर्म परिवर्तन से एक्चुअली जो आप मेरे ट्वीट का जिक्र कर रही हैं मैडम, उसमें बेसिकली जिसका नाम लोगों ने लव जिहाद, जिहाद तो नहीं कहेंगे मैडम। जिहाद का वर्ड रिलीजन में तो डिफरेंट मीनिंग है कुरान के अंदर जिहाद वर्ड की, तो जिहाद तो नहीं कहलाएगा। लेकिन मेरा उसके पीछे ये था कि जब दो के बीच में, मैं स्पेशली मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा था मैडम, केवल बेसिकली मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा था। और हिंदुस्तान के अंदर जो टॉपिक जो बहस का बना हुआ है, खास करके हिंदू और मुस्लिम के मैरिज के बीच में है। और यहीं से बड़ा अच्छा वर्ड कॉइन कर लिया गया, लव जिहाद जा करके। मेरा फोकस उस पॉइंट को था। मेरा सिंपल सा मानना है कि देखिए, जब दो लोग में लव होता है, शादियाँ होती हैं, तो उसमें मूवमेंट वन साइडेड क्यों हो रहा है? अगर एक धर्म छोड़ रहा है मतलब उस धर्म को छोटा माना गया और दूसरे धर्म को बड़ा मान के वहाँ गया कोई। तो अगर यहाँ पे फिर आता है कि दो के बीच प्रेम हुआ, प्रेम बराबरी होना चाहिए था। एक ने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरा अपनाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ये था
आप ठीक है लव कीजिए, लेकिन ये कन्वर्सन में नहीं कि मैं आपका धर्म पालूं या मेरा धर्म। अच्छा, कन्वर्सन वन साइडेड इंडिया में आप देख लें उठा के बॉलीवुड से लेके, मेन तो बॉलीवुड में शुरू अब तो ये गांव तक पहुंच गया सारी चीज़ें। आप देखेंगे मोस्टली 80 से क्या बॉलीवुड से शुरू हुआ और क्या गांव तक पहुंच गया? नहीं, जो शादियां मैडम हुई हैं तो पहले ग्लैमर की दुनिया थी बॉलीवुड के अंदर, वहाँ पे खूब शादियां इस तरह से इंटर रिलीजन में शादियां की। लेकिन आप देखेंगे कि मोस्टली अब जो कन्वर्सन्स हुए हैं मैडम, वो शादियां तो गांव में भी हुआ करती थी। बॉलीवुड में जो शादियां हुई हैं वो मीडिया में आती सिर्फ। नहीं, मेरी बात सुनिए मैडम, बिल्कुल कदापि नहीं। इस तरह की इंटर जो रिलीजन शादियां होती थी ना, बहुत होती थी गाँव में भी, शहरों में भी होती हैं। मैं नहीं सहमत हूँ। जो आज रैम्पेंट 15-20 सालों में जो हुआ, इसकी तीव्रता बढ़ी मैडम विगत 15-20 सालों में। नहीं होनी चाहिए, लेकिन 20 बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने कब कहा है कि नहीं होनी चाहिए? मैंने इंटरव्यू दिया है, आपके यहाँ भी दिया था मैंने इंटरव्यू। हो, मेरे को आपत्ति कन्वर्सन से है। अगर 2 शादियां हो रही हैं तो दोनों ऐसे उदाहरण हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हैं कि एक घर में आप मंदिर भी बनाइए और आपका इबादत करने कमरा भी करिए। उसको जब भी आप चेंज करते हैं रिलीजन, तो मतलब एक को छोटा समझा गया, दूसरे को बड़ा समझा गया। बॉलीवुड के लिए मैंने इसलिए कहा मैडम कि आज हमारे लिए एक रोल मॉडल है, वहाँ की ज़िंदगी लोग इमिटेट करते हैं, वहाँ फॉलो करते हैं, या कैरेक्टर्स रोल मॉडल होते हैं आम लोगों के, दर्शकों के। अगर वहाँ पे एक घटना होती कि नहीं भाई फला कैरेक्टर ने फला हिंदू से करके उसको मुसलमान बना दिया है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं, हम भी करते ले जाते हैं, अपन ले जाके मुस्लिम बना देते हैं। तो चूँकि वो रोल मॉडल बनते हैं कैरेक्टर्स, मेरा मतलब फिल्मी दुनिया खूब करे मैडम, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रिलीजन उसका न छुड़वाया जाए। और यही कारण है कि ये करने के कारण आपको लोगों को मौका मिल गया कि नहीं भाई आप तो हमारा धर्म छुड़वा रहे हो, 80% हिंदू रह रहे हैं यहाँ, उसके बाद भी यहाँ पे सारी शादियां में 90% कन्वर्सन हिंदुओं का। क्योंकि जब इंटर रिलीजियस मैरिज होता है तो स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत हो सकता है। मैं लॉ में बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैडम, मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई है इसके अंदर कि आप दोनों धर्मों को सम्मान दीजिए, दोनों खूब करिए, मत को तो रोज करिए मैडम जाकर, लेकिन दोनों धर्म को छोटा मत दिखाइए, दोनों बराबर से मानिए, दोनों अपने अपने रिलीजन को मानिए। आपने ये भी कहा कि मुस्लिम शुड टर्न वेजिटेरियन। बिल्कुल सही कहा है। वेजिटेरियन करने मतलब पर्यावरण को आप जानते हैं, ग्रेटा थुनबर्ग को जानती होंगे, बड़ा नाम है वेस्टर्न कंट्रीज के। ग्रेटा थुनबर्ग 18-19 साल की बच्ची ने पूरी क्रांति खड़ी कर दी क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट को लेकर के। उससे बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप पूछें मैडम कि आज के डेट पर मेरा सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है, तो ग्रेटा थुनबर्ग को मैं नंबर 1 पे रखता हूँ, दूसरा कैलाश सत्यार्थी जी को रखता हूँ मैं दूसरे नंबर। ग्रेटा थुनबर्ग आपकी रोल मॉडल एज अ क्लाइमेट प्रोटेक्शन कर रही आंदोलन, मेरे लिए वो रोल मॉडल है मैडम। मेरा उद्देश्य देखिए, फिर से आप वेस्टर्न कल्चर के नहीं क्यों? नहीं भारत में नहीं यहाँ वेस्ट कल्चर नहीं, क्योंकि इस लेवल का जो रिवोल्यूशन है क्लाइमेट को लेकर के ना, एक ही बच्ची तो है जो पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखी हुई। बता दीजिए उसके सिमिलर कोई फिगर बता दीजिए जो नोबेल प्राइज की लाइन में खड़ी हो गई 17-18 साल में। उसके आइडिया उसने वेजिटेरियन, पूरा क्रिश्चियन तो सब खाते हैं, उसने खुद पहले वेजिटेरियन बनी, अपने माँ बाप को फोर्स कर दिया उसने कि आप भी बनिए, क्योंकि जो नॉनवेज होता है मैडम उससे जो CFC गैस जो हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, वो भी नॉन वेज भी दुनिया में बड़ा एक फैक्टर, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा इस पर लोग नहीं करते हैं। इसको लेकर ये कि अगर हम वेजिटेरियन बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट या एनवायरनमेंट को, पशुओं के साथ तो थोड़ा अन्याय भी कमी आ जाएगी, साथ में हमारा ये भी, मैंने इसको क्लैरिफाई भी किया मैडम कि आप प्रैक्टिसिंग वेजिटेरियन हैं? मैं वेजिटेरियन बचपन से हूँ मैडम, वेजिटेरियन हूँ मैं। क्यों? क्योंकि घर वालों ने आपको वेजिटेरियन नहीं, या आपने चॉइस? मेरा इनबॉर्न है मैडम, मैं तो इनबॉर्न मतलब जेनेटिक कह लीजिए, क्योंकि जब मुझे 4-5 साल का था तो घर पे, अब खाते मेरे पूरे खानदान में सभी हैं, तो जब मुझे खाने को दिया जाता था तो उस समय मुझे जी मतलाता था, मेरे को उल्टी होती थी। तो मतलब जेनेटिक है मेरा, कि इनबॉर्न नहीं, मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ थी जहाँ पे पशुओं का मांस से मैं दूर था। तो मेरा कोई आइडियोलॉजी कारण मैं कन्वर्ट नहीं हुआ मैडम कि ये ग्रेटा थनबर्ग को देख करके मैंने अपना चेंज कर दिया। मैं बचपन से हूँ मैं उस चीज़ को लेकर के, और उसी कारण जो एनिमल लव है ये भी बचपन से जेनेटिक है मेरा, कि पशुओं से बहुत प्रेम, हर जीव जंतुओं से। कोई मेरे यहाँ भी चींटी भी आती है तो मारता नहीं, उसको उठा के बाहर डाल देता हूँ, या कोई मक्खी आ रही तो मार के उसको बाहर निकाल देता हूँ। इंटरेस्टिंग लाइफ आपकी रही। हाँ। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्यों आए आप, और डू यू फील दैट आपका जो क्रिएटिव परस्यूट है और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता आपका? नहीं, देखिए मैडम, इसमें 5-6 साल से ये चीज़, हालांकि मैंने किसी को बताया नहीं, ये एंगल मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, कि जब मैं चाणक्य जी पे अध्ययन कर रहा था, हिंदुस्तान में जो एक महान ब्राह्मण चाणक्य है, उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है मैडम डिटेल में। उनकी लाइफ मेरे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस की उनकी लाइफ को, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति था जो एक साथ 7 क्वालिटीज़ थी जिनके अंदर,
तो जो उनकी सिंप्लिसिटी मैंने देखी कि मंत्री हो करके भी बेचारे 2 लालटेन रखते थे, एक सरकारी काम के लिए, प्राइवेट काम के लिए, झोपड़ी में रहा करते थे। प्रधानमंत्री होकर भी चंद्रगुप्त मौर्य के, जबकि चंद्रगुप्त को खुद ही बनाया उन्होंने, सम्राट बनाया, लेकिन उनके कोई मोह माया नहीं था। और दूसरा उन्होंने ये मैसेज दिया कि जो भी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं वो हमारे राष्ट्र जन सेवा के लिए होती है, वो फ्लॉन्टिंग के लिए, दिखावे के लिए नहीं होती हैं। ये पढ़ते पढ़ते मेरे जीवन पे इतना असर पड़ गया मैडम कि मैंने खुद जूनियर कौटिल्य कैरेक्टर ब्राह्मण द ग्रेट बनाया। कौटिल्य जी का असर मेरे ऊपर पड़ गया। मैंने पिछले 5 साल से नेम प्लेट घर से हटा दी मैडम, कोई नेम प्लेट नहीं लगाता हूँ मैं लाइफ में। मैंने कोई शासकीय बंगला नहीं लिया, मैंने घर पे कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं लगवाया, कोई सर्वेंट अपने यहाँ अलाउ नहीं किया मैंने। इसके अलावा मुझे बड़ी गाड़ी दी गई इनोवा, तो मुझे लगा नहीं इससे ज़्यादा पोल्यूशन होगा, क्लाइमेट ख़राब होगा, मैं कहा मुझे छोटी गाड़ी दो, तो मैंने छोटी गाड़ी ले ली। तो नतीजा ये हुआ मैडम कि जो IAS का पद है मेरे लिए आज के डेट पर केवल कर्तव्य है मेरा, सरकार की जवाबदारी है। जैसे मैं 8 घंटे ड्यूटी करके आता हूँ, मैं एक प्राइवेट आदमी हो जाता हूँ। तो मैंने वो सब चीज़ें को चाणक्य के लाइफ की सिंप्लिसिटी ढाल ली। बाहर जाता हूँ, कोई पूछता है तो मैं कोशिश करता हूँ मुझे अपना पद ना बताना पड़े, मैं उसको अब कंसील करता हूँ, जबकि लोग दिखाने में गर्व करते हैं। तो आज के डेट पर मैडम ब्यूरोक्रेसी में होते हुए जो एक ईगो सिस्टम होता है, मैं IAS हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी सेवा में हूँ, मैं बड़े टॉप पर हूँ, जो एक मेंटल सेटअप लोगों का रहता है, मैं उससे बाहर निकल गया मैडम। आप कौटिल्य के बारे में बता रहे थे, तो आपकी जो अगली किताब है इस पे फोकस होगा? Yes, ma'am. I have just started to author my next project. That is part 2 of Brahmin the Great, War Against Kali Yuga. Okay. So basically, I want to write such a book in which the entire Sanatan religion could be depicted, and what is role of every individual, every citizen of India. Besides, what are the major hurdles in our way of spiritual progress. और तीसरी चीज़ मैं इसमें ये चीज़ ले रहा हूँ मैडम कि कुछ ऐसा सिस्टम मैं ले रहा हूँ, सोशल सिस्टम, चीज़ों को आगे चल कर यदि कभी लॉ बनाना पड़े इस बुक पर 100 साल बाद, 200 साल बाद, जिसके अंदर किस प्रकार से आप अपने रिलीजन को बड़े पैमाने पर वर्ल्ड में दिखा सकें, कैसे आप स्ट्रक्चर नया फॉर्म कर, उसके लिए मैं उसमें छोड़ रहा हूँ। क्योंकि राइटर तो ऐसा है कि 200 साल बाद भी किताब उठा ली जाती है। तो आप ये फिक्शन दैट विल बी फिक्शन, बट ये जो रहे आप चोला बड़ी इजीली यूज कर लेते हैं, आप फिक्शन कह देते हैं। कोई मैडम रियलिस्टिक फिक्शन, दैट इज रियलिस्टिक। आजकल क्या एक नया जॉनर आया रियलिस्टिक। कई चीज़ें क्या होती है मैडम कि हम रियल में दिखाने में प्रॉब्लम है, और अगर पूरा फिक्शन तो प्रॉब्लम है, तो उसका हमने तरीका रियलिस्टिक फिक्शन मतलब होता है कि सत्य पे हम कर्टन डाल देते हैं। हालांकि कम लिखे जा रहे हैं रियलिस्टिक फिक्शन, कम, लेकिन जहाँ पर आपको खुल के मैदान पे नहीं आना है, या जिसमें लोग उसको बड़े हल्के में लेंगे, तो उसको तो मेरी 8 नॉवल के एक ही रियलिस्टिक फिक्शन है। रियलिस्टिक मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ मैडम कि अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हम उसको उसी रूप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मैं लिख रहा हूँ ये कि अगर जैसे जो भी मैंने पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड के कई कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, कंपैरेटिव स्टडी भी किया है। मुझे लगता है कि यदि भविष्य में ये लगता है कि नहीं, सनातन जैसे दुनिया का सबसे पूरा रिलीजन, भले लोग ना माने, सनातन इज़ द मोस्ट एंशियंट रिलीजन, और एक वैदिक सिस्टम इज़ द मोस्ट ओल्ड वन। तो मुझे लगता है कि इसको पूरे दुनिया तक इस बात को पहुंचाई जाए, और इंडियन जो कल्चर है इसको पूरे दुनिया के सामने रखा जाए। और आप समझते हैं दैट यू आर वन पर्सन हु इज ट्राइंग टू डू दिस? नहीं, कोई करे चाहे ना करे, मेरे मन में ख्याल आया है कि मुझे करना चाहिए, कि ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए कि रियली फिक्शन होते हुए भी यदि इसको लगता है कि नहीं इसके प्रोविजंस तो बड़े अच्छे हैं। क्योंकि होता है मैडम, कई बार समाज में देखिए आप, मैकियावेली की किताब को लेकर के एक तरह से लोगों ने अपनी ज़िंदगी की आइडियोलॉजी बना ली, तकिए नीचे रख के सोते थे। बुक्स वंस यू राइट अ बुक एंड थ्रो इन द मार्केट, आपके हाथ में नहीं मैडम, 200 साल बाद किसके हाथ में लग जाएगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा कोई नहीं जानता मैडम। हो सकता है ये रियलिस्टिक फिक्शन होकर किसी के हाथ में लग जाए कि ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसपे हम एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। उसी एंगल से मैं लिख रहा हूँ कि इसमें आइडियलिस्टिक है मैडम, जो चीज़ मैं बताई एक आइडियल बताया है, और टू अचीव द आइडियल इट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस एफर्ट्स, or you can say it is very difficult to reach to that point. Chalo, I hope that you make all the efforts and you get success. Thank you very much for being part of the podcast. Thank you madam for inviting me for this interview. Thank you for watching or listening to this episode of ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.